Hello everyone, today we are going to start chapter 12 of history, the national movement second phase. The national movement entered a new phase after the arrival of महात्मा गांधी. अब नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी के आने के बाद पूरी तरह से चेंज हो जाता है. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. He received his early education in India. Later he went to England to study law. इंग्लैंड से लॉ की एजुकेशन ली एंड साउथ अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस की. ड्यूरिंग हिज स्टे देयर ही फॉट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द वाइट रूलर्स अगेंस्ट द इंडियंस लिविंग देयर. उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स का रूल था और वहाँ जो इंडियंस रह रहे थे उनके ऊपर जो टॉर्चर ऑपरेशन हो रहा था उनसे उनको बचा रहे थे. ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल ही इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन. वहीं से उन्हें सत्याग्रह स्टार्ट किया. इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. दो चीज़ों पे बेस्ड था, एक तो सच बोलना और एक अहिंसा. अहिंसा रखना, नॉन वायलेंस रखना, लड़ाइयाँ नहीं करना. Gandhiji returned to India in 1915. To understand the condition of India, he traveled across the country. 1915 में इंडिया आए और इंडिया को समझने के लिए जगह जगह गए. He reached the conclusion that a truly national struggle had to go beyond the achievement of independence. अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो एक पूरा नेशनल स्ट्रगल की ज़रूरत है. It also had to reform society. He founded the Sabarmati Ashram near Ahmedabad and welcomed people of all caste and religions to it. उन्होंने कहा सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है. अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया और वहाँ पे हर कास्ट और रिलीजन के लोगों को रहने के लिए बुलाया. He also started a nationwide movement against untouchability. Untouchability के against movement start किया. He called people of so-called lower caste Harijans और God's children. Lower caste people को नाम दिया Harijans. Harijans का मतलब होता है God के बच्चे, भगवान के बच्चे. गांधी जी also worked to revive village crafts. Small industries were started in many villages. He tried to make the चरखा popular. छोटे villages में industries start की गई छोटी छोटी. चरखा popular किया और चरखा से खादी क्लोथ बनाते थे. खादी was popularized as a symbol of self-reliance. Early campaigns. Gandhiji's social ideology gave strength to his political activities and made the national movement a mass movement. अब गांधी जी की आइडियोलॉजी अलग थी. उनने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जिससे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको मास मूवमेंट बना दिया जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए. द मैथड ही एडवोकेटेड वॉज सो सिंपल दैट इवन द कॉमन पीपल कुड फॉलो दैम. उनके तरीके बहुत सिंपल थे जिससे कोई भी आसानी से समझ लेता था. And yet, despite being simple, these methods were so effective that the British had no answer for them. और तरीके इतने effective होते थे कि ब्रिटिशर्स के पास इन चीज़ों का कोई आंसर भी नहीं होता था. The first moment in which Gandhiji got involved was at Champaran in Bihar in 1917. सबसे first moment था चंपारण बिहार में 1917 में. यहाँ जो इंडिगो प्लांटेशन वाले थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे. Here the peasants on indigo plantations were forced to sell indigo at prices fixed by the Britishers. पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स ने जो प्राइस फिक्स की होती थी उन्हीं प्राइसेस पे इंडिगो सेल आउट करना होता था. These prices were very low. Gandhiji protested against it and forced the government to increase the prices at which the planters got indigo from the cultivators. गांधी जी इसके अगेंस्ट में गए और गवर्नमेंट से ये की कि इंडिगो की प्राइसेस बढ़ाई जाए और प्लांटर्स इसी के अगेंस्ट में गए. सेकेंड मूवमेंट हुआ अहमदाबाद में. In 1918 गांधी जी led the workers of textile mills in Ahmedabad against the mill owners. यहाँ जो वर्कर्स थे उनकी वेजेस बहुत कम थी. गांधी जी ने उन्हीं वर्कर्स की हेल्प की. मिल ओनर्स के अगेंस्ट में गए ताकि उनकी वेजेस बढ़ सके. The mill owners had to raise the wages of the workers. Gandhiji also involved himself with the peasants of Kheda district in Gujarat. Next हुआ खेड़ा district में. He forced the government to suspend tax collection because the crops had failed that year. उस साल क्रॉप्स फेल हो गई थी इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए फोर्स किया गया कि टैक्स कलेक्ट नहीं करे. By 1919, गांधी became the most popular leader in India. 1919 तक गांधी जी बहुत पॉपुलर हो गए थे. Due to his efforts, the common people for the first time became involved in the national movement. गांधी जी की हेल्प से ही बहुत सारे कॉमन लोग नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए. Numerous mass movements were started under his leadership. These movements initiated activities such as peaceful demonstrations. शांति से वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते थे. बॉयकॉट्स ऑफ कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ब्रिटिशर्स के कोर्ट्स और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहते थे. पीसफुल डिफेंस ऑफ लॉ. जो ब्रिटिशर्स के लॉ थे उनका शांति से डिफेंड करते थे.
नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस पे नहीं करना, एंड पिकेटिंग ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स, जो भी शॉप्स फॉरेन गुड्स ब्रिटिशर्स के गुड्स सेल आउट करती थी उन शॉप्स को बंद कर दिलवाते थे। Montagu Chelmsford Reforms 1919. After the First World War, the government passed the Government of India Act 1919. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया, जिसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स वर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज मेड बाय कैमरल, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया उसको। इट वुड कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, 2 हाउसेस थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इलेक्टेड मेंबर्स नाउ फॉर्म द मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, जो मेंबर्स इलेक्टेड होंगे वो हाउस के मेजॉरिटी मेंबर्स में इंक्लूड होंगे। नो सिग्निफिकेंट चेंज वॉज मेड इन द पावर ऑफ दीज हाउसेस, और जो हाउसेस के पास पावर्स पहले से थी उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं लाया गया। द सिस्टम ऑफ डायरकी और डुअल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस। अब जो स्टेट्स थे उसके अंदर डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई। डुअल गवर्नमेंट में सिस्टम ये था कि जितने भी स्टेट काम करते थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। Subjects like finance and police, which the British considered more important, were put in reserve list. जो ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फाइनेंस एंड पुलिस, उसको रिजर्व रखा, जिसके डिसीजंस ब्रिटिशर्स लेंगे। They were under control of governor and his council. Subjects like education and public health, which they considered less important, were the responsibility of the ministers who were responsible to legislature. अब जो उनके लिए लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एजुकेशन की, हेल्थ की, उन चीज़ों को स्टेट्स के हाथ में, उनके इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में दे दिया। इसलिए जो मेन पावर्स थी वो अभी भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास ही थी। The act disappointed the Indians. Act से इंडियन डिसअपॉइंट हुए। Protests broke out all over the country. In March 1919, the government passed the Rowlatt Act. अब नया एक्ट आया, Rowlatt Act. Under it, the government could arrest anyone without a warrant and imprison him without a trial. अब इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी विदाउट वारंट के, और उसके ऊपर केस स्टार्ट हो सकता था, उसको जेल में डाल सकती थी, किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं थी। दिस फर्दर अराउज्ड पब्लिक एंगर एंड led to mass demonstrations. इससे लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। A countrywide protest was organized on 6th April 1919, which was observed as National Humiliation Day. और उस दिन पूरी कंट्री में एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया और उसको नाम दिया गया नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। Now the next very important thing is Jallianwala Bagh Massacre 1919. On 10th April 1919, 2 national leaders, Dr. Saifuddin Kichlia and Dr. Satyapal, were arrested in Punjab. इन दोनों को अरेस्ट किया गया। On 13th April 1919, the festival of Baisakhi was being celebrated on this day. बैसाखी सेलिब्रेट किया जा रहा था पंजाब में। People gathered in a park in Amritsar called the Jallianwala Bagh to protest against these arrests. इन 2 important leaders के अरेस्ट के अगेंस्ट में लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। द पीसफुल गैदरिंग वॉज अटेंडेड बाय मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। सबने अटेंड की। जनरल डायर, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, केम टू द पार्क विद सम सोल्जर्स एंड ब्लॉक्ड द ओनली एंट्रेंस ऑफ द पार्क। अब जो उस टाइम मिलिट्री कमांडर थे जनरल डायर, अपनी फोर्सेस के साथ आए, जो उस पार्क की एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट से उनको ब्लॉक कर दिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। The firing lasted for nearly 10 minutes till all ammunitions were exhausted. जितने भी उनके पास गन्स थी सब एग्जॉस्ट हुई, तब तक फायरिंग चलती रही। Hundreds of people were killed and thousands were critically wounded. Hundreds, बहुत से लोग मरे और बहुत से लोगों के लगी। The massacre shocked the entire country. सब शॉक में रह गए। There were widespread protest. All national leaders condemned this cowardly act. किसी को भी एक चीज़ पसंद नहीं आई। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। उनके पास जो उनका टाइटल था वो टाइटल वापस दे दिया। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन पंजाब। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पीपल वर टॉर्चर्ड एंड न्यूज़पेपर्स वर बैन। लोगों पे बहुत बुरा टॉर्चर शुरू हुआ, न्यूज़पेपर बैन कर दिए गए। All this repression further strengthened people's determination to fight against oppression. और लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि उनको इन चीज़ों के अगेंस्ट में लड़ना है। Next, Khilafat movement of 1920. The Khilafat movement was organized by the Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. 2 ब्रदर थे, इनने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। In protest against the injustice done to Turkey after the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की भी इन्वॉल्व था, वो हार गया था, तो वहाँ जो इनजस्टिस हुई थी उस चीज़ के अगेंस्ट में था। Turkey was important to Indian Muslims as the Sultan of Turkey, also called as Khalifa, was the head of Muslims throughout the world. अब उनको टर्की से इतना इसलिए था क्योंकि जो सुल्तान थे टर्की के, जिसको खलीफा बोला जाता था,
वो पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम्स के हेड माने जाते थे। द खिलाफत लीडर्स पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गिव बेटर ट्रीटमेंट टू टर्की। अब प्रेशर ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि टर्की के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो। थ्रू दिस डिमांड मुस्लिम्स वर ड्रॉन इनटू द नेशनल मूवमेंट इन लार्ज नंबर। अब इस डिमांड को साथ रख के मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट में लाया गया। दिस मूवमेंट बिकेम अ पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। द कांग्रेस लीडर्स जॉइंड द एगिटेशन एंड पॉपुलराइज्ड इट। और इसी का साथ कांग्रेस लीडर्स ने भी दिया। Now, next is non-cooperation movement from 1920 to 1922. Angered by the rigid attitude of the British, the Congress decided to start a non-cooperation movement under the leadership of Gandhi ji. अब ब्रिटिशर्स की चीज़ें पसंद नहीं आने के बाद कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की सोची गांधी जी की लीडरशिप में। The movement aimed at protesting against British repression in Punjab and their policy towards Turkey. मेन था जो पंजाब में जलियांवाला बाग हुआ वो, और टर्की में जो हो रहा था उस चीज़ों के अगेंस्ट में। दिस वॉज ऑल्सो फॉर अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हल्के इंडिया की गवर्नमेंट आ जाए। स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज टू बी लॉन्च्ड इन स्टेजेस। मूवमेंट एक साथ लॉन्च नहीं होने वाला था, स्टेजेस में लॉन्च होने वाला था। It started with giving up of honorary titles received by Indians from the government. अब जो टाइटल्स लोगों को मिले हुए थे वो टाइटल्स वापस देने से स्टार्ट हुआ। गांधी जी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरी हिंद। गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने केसरी हिंद का टाइटल दिया था, वो टाइटल गांधी जी ने वापस दे दिया। This was followed by the boycott of schools, colleges, legislatures, law courts and elections to the legislatures. सब चीज़ों का boycott start हुआ। People were asked not to work and not to cooperate with the government in any manner. लोगों को बोला गया ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करना और उनका साथ नहीं देना है। Foreign clothes were burnt in public bonfires and strikes were organized at many places. Foreign ब्रिटिशर्स के जो क्लोथ्स से वहाँ क्लोथ्स आ रहे थे उनका बॉयकॉट हुआ, उनको बड़े बड़े फायर्स लगा के जला दिया गया और बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम अलॉन्ग विथ बॉयकॉट एंड नॉन कॉपरेशन अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाज आल्सो लॉन्च्ड। इट इंक्लूडेड द फॉलोइंग: पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखा एंड खादी क्लोथ को और चरखा को पॉपुलर किया गया। प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट किया। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ख़त्म की गई। एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। द मूवमेंट वॉज अ सक्सेस। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विलिंगली वेंट टू जेल। मूवमेंट सक्सेसफुल था, बहुत सारे लोग विलिंगली जेल चले गए। एट द कांग्रेस सेशन इन अहमदाबाद इन 1921 इट वॉज डिसाइडेड दैट द लास्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट वुड एम्फसाइज नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, thereby they find the right of the British to rule over India. अब जो कांग्रेस का सेशन हुआ अहमदाबाद में उसमें डिसाइड किया गया कि मूवमेंट का लास्ट स्टेज होगा कि हम टैक्सेस का पेमेंट बंद कर देंगे और ब्रिटिशर्स का जो राइट है उन राइट्स को ख़त्म करेंगे। दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी। पर यह प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी में एक इंसिडेंट हो गया था, इस वजह से मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। विड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट। चोरा चोरी वॉज अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश। चोरा चोरी उत्तर प्रदेश का एक छोटा विलेज है। ऑन 5th February 1922 अ क्राउड ऑफ पीजेंट्स वॉज लीडिंग अ प्रोटेस्ट मार्च थ्रू द विलेज। पीजेंट्स ने मिलकर ये प्रोटेस्ट मार्च अरेंज की थी। द पुलिस बीट अ वॉलंटियर पिकेटिंग शॉप्स। ब्रिटिश पुलिस ने एक जो ब्रिटिश शॉप्स थी उनको हटा रहा था उसको मारना शुरू कर दिया। दिस एगिटेटेड द पीजेंट्स एंड दे सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन, जिससे पीजेंट्स को गुस्सा आया और उन्हें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 22 पुलिसमैन डाइड। महात्मा गांधी वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एनी वायलेंस एंड ही इमीडिएटली विथड्रॉ द मूवमेंट। महात्मा गांधी को वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इस वजह से उन्हें मूवमेंट वापस ले लिया। Non-cooperation to civil disobedience movement. After the withdrawal of non-cooperation movement, the Congress divided into two groups. अब कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। One group led by C.R. Das, मोतीलाल नेहरू and वल्लभ पटेल who wanted to end the boycott of legislative council. जो legislative council का boycott हो रहा था उसको ख़त्म करना चाहते थे। These heroes felt that the Congress continued to boycott the elections. People who were loyal to the British would get elected and then the government would have absolute power to do anything it wanted. इनको लगता था बॉयकॉट ख़त्म कर देना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शंस होते हैं और ये लोग जीत जाते हैं तो ये पावर में आ जाएंगे और अपने हिसाब से चीज़ें कर सकेंगे। दे वांटेड द कांग्रेस टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस एंड जॉइन द गवर्नमेंट एंड देन वर्क टू डिस्ट्रॉय द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर्स फ्रॉम इनसाइड।
ये चाहते थे इलेक्शंस में पार्ट लें, गवर्नमेंट ज्वाइन करे और फिर अंदर की तरफ से इनके लेजिस्लेचर को ख़त्म करे. सो दीज प्रो चेंजर्स वांटेड टू एंटर द लेजिस्लेचर एंड देन मेक इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू फंक्शन बाय अपोजिंग ऑल इट्स पॉलिसीज़. इसलिए ये लेजिस्लेचर में जाकर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग और पॉलिसीज़ को अपोज करना चाहते थे. द सेकेंड ग्रुप कॉल्ड द नो चेंजर्स अपोज ज्वाइनिंग द काउंसिल. सेकेंड ग्रुप ने काउंसिल ज्वाइन करने से मना किया. दिस ग्रुप वांटेड टू अंडरटेक अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम. ये ग्रुप एक अलग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते थे. दिस ग्रुप वॉज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी एंड राजेंद्र प्रसाद. इनके ये 3 लीडर्स थे. इन 1923 द प्रो चेंजर्स फॉर्म द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी. अब जो प्रो चेंजर्स थे कांग्रेस से अलग हुए और उनने अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, पॉपुलरली नोन एज स्वराज पार्टी. द न्यू पार्टी वॉज टू फंक्शन एज अ ग्रुप विद इन द कांग्रेस. ये कांग्रेस के अंडर ही काम करने वाली थी. द कांग्रेस अलाउड द स्वराजस टू कंटेस्ट इलेक्शंस. कांग्रेस ने अलाउ किया आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं. स्वराज पार्टी कंटेस्टेड द इलेक्शंस एंड वन सम सीट्स इन द लेजिस्लेचर. अब इलेक्शंस लड़े और कुछ सीट्स लेजिस्लेचर में जीत गए. By opposing every British move, they made it extremely difficult for the British to get their policies and proposals approved in the legislature. अब ब्रिटिशर्स की हर चीज़ के अगेंस्ट में गए और किसी भी पॉलिसी या प्रपोजल को अप्रूव नहीं होने दिया. आफ्टर द विथड्रॉवल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, गांधी जी हैड बीन जेल्ड. गांधी जी जेल में थे. वो रिलीज हुए फरवरी 1924 को. आफ्टर हिज रिलीज द कांग्रेस एज्यूम्ड इट्स कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम. कांग्रेस अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में आई. सम इश्यूज दैट वर फोकस्ड अपॉन वर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड स्प्रेड ऑफ खादी. इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया. Next is mobilization of the peasants. Many peasant reports had broken out in the country ever since the British rule had been established. कुछ peasant revolt कभी से हो रहे थे जब से British rule इंडिया में आया. During the non-cooperation movement, peasants have been active participants. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पीजेंट्स भी एक्टिव हो गए. किसान सभा फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देयर एजेंट्स इन इंडिया द जमींदार्स. अब किसान सभा लगी जिसमें पीजेंट्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हुए और जिसको ब्रिटिशर्स का एजेंट मानते थे जमींदार्स को, उनके भी अगेंस्ट में गए. आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट वॉज अ स्ट्रेटजी एक्टिवली परस्यूड बाय द कांग्रेस. नेशनलिस्ट लीडर्स वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीजेंट. लीडर्स ने काम किया ताकि पीजेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो. इन 1928 वल्लभ भाई पटेल ऑर्गेनाइज्ड द बारदोली सत्याग्रह. You protest against an increase in the taxes that the peasants had to pay. वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया ताकि पीजेंट्स को जो हाई टैक्सेस पे करने पड़ते हैं उनसे बच सके. गांधी जी वॉज ऑल्सो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉज ऑफ द पीजेंट्स. गांधी जी भी फार्मर्स की, पीजेंट्स की बहुत हेल्प करते थे. वॉज द फर्स्ट फेज. नाउ वी आर कमिंग अप टू सेकेंड फेज, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट. द सेकेंड फेज, revolutionary activities revived after the withdrawal of non-cooperation movement. In 1924, the revolutionary movement leaders formed the Hindustan Republican Association. अब जो leaders थे उनने association बनाई HRA. Its objective was to overthrow the British through an armed revolution. उनका था कि एक armed revolution, violence की तरह revolution हो with guns and all, और ब्रिटिशर्स को बाहर किया जाए. In 1925, a group of revolutionaries stopped a train at Kakuri in Uttar Pradesh and took away some government money. 1925 में रिवॉल्यूशनरीज ने काकोरी उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन रोकी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मनी थे उनको चुराया. दिस मनी was to be used in revolutionary activities. Many such incidents occurred. The repression of the British failed to stop the revolutionaries. Britishers revolutionaries को रोक नहीं सके. In 1928, they assassinated a British officer named Saunders. Few months earlier, he had ordered a lathi charge on a peaceful demonstration led by Lala Lajpat Rai, during which Lalaji received fatal injuries, and let us come to them. Revolutionaries ने British पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को मार दिया था क्योंकि उन्हें लाठीचार्ज किया था लाला जी की एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे, जिस वजह से लाला लाजपत राय को बहुत चोटें आई थी. नाउ द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. अब सोशलिस्ट वर्ड इसलिए ऐड हुआ ताकि किसी भी रिलीजन के लोग आसानी से एंटर कर सके. The word socialist was added to it because the revolutionaries, including Bhagat Singh, felt that socialism should be one of their goals. क्योंकि भगत सिंह को और उन्हीं के जैसे रिवॉल्यूशनरीज को लगा कि सोशलिज्म भी एक गोल है. थ्रू HS
RA. The revolutionaries continue to resist the government. अब इस एसोसिएशन के थ्रू गवर्नमेंट का अपोजिशन में कंटिन्यू किया उन लोगों ने जाना. On 8 April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly to protest against the Public Safety Bill and the arrest of 31 labor leaders. भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंका पब्लिक सेफ्टी बिल के अपोजिशन में और जो उन्हें लेबर लीडर्स अरेस्ट किए थे उनको फ्री कराने के लिए. दे मेड श्योर दैट द बॉम्ब वाज हार्मलेस एंड नो वन वाज इंजर्ड. और साथ ही ये इंश्योर किया कि बॉम्ब से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो. आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब एंड शाउटिंग एंटी ब्रिटिश स्लोगन्स बोथ ऑफ देम वर सरेंडर्ड. बॉम्ब फेंकने के बाद और एंटी ब्रिटिश स्लोगन्स बोले उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में दोनों ने सरेंडर कर दिया. द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन बंगाल. बंगाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. यंग मैन टारगेटेड अनपॉपुलर पुलिस ऑफिसर्स एंड मजिस्ट्रेट. जवान लोगों ने पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट पे अत्याचार शुरू कर दिए. इन 1930 3 young revolutionaries, Binoy Bose, Badal Gupta and Dinesh Gupta, killed the Inspector General of Prisons. इन तीनों ने मिलकर इंस्पेक्टर जनरल को मार दिया. अमंग द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ बंगाल द मोस्ट फेमस वॉज सूर्य सेन. ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी. On 18th April 1930, he, along with some other revolutionaries, attacked and occupied the police armory at Chittagong to get the arms for use against the British. सूर्य सेन ने अपने रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलकर चिटागोंग में जो पुलिस की जगह थी जहाँ पे बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखते थे उस पर अटैक किया और सब ले लिए. ही वॉज लेटर अरेस्टेड एंड सब्सिक्वेंटली हैंग्ड. उनको अरेस्ट कर लिया गया और फांसी पे लटका दिया गया. Women also took an active part in the revolutionary movement. Women का भी एक important role था. They acted as messengers, gave shelters to the revolutionaries and sometimes even attacked British officers. वो इधर से उधर मैसेज कन्वे करना, revolutionaries को बचाने का काम, शेल्टर देने का काम और कभी कभार ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक भी कर देती थी. प्रीतिलता वाडेकर became a martyr in the struggle to free the country. ये फर्स्ट मार्टियर थी वुमेन्स में से. The revolutionary movement lost momentum after the British came down heavily on the revolutionaries. अब मूवमेंट कम हुआ जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिवॉल्यूशनर्स को अरेस्ट करके फांसी देना शुरू किया. भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931. इन तीनों को फांसी दे दी गई. चंद्रशेखर आज़ाद ऑल्सो डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश एट इलाहाबाद. चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए मर गए. The entire nation mourned the death of these brave revolutionaries. और इनके मरने पर पूरा नेशन गम में डूब गया था. Simon Commission 1927. In November 1927, the government appointed a commission to look into the working of Government of India Act 1919 and suggest administrative reforms. नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई. तो इस कमीशन को बोला गया साइमन कमीशन. अब उसका काम था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना है उसकी वर्किंग के ऊपर ध्यान देगा और अगर चेंजेस के लिए कुछ नीड्स है तो वो चेंजेस बताएगा. इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन. इंडियंस वर डिसअपॉइंटेड विद दिस कमीशन बिकॉज all the members of the commission were Englishmen. The government refused to accept the demand for self-government. इंडियंस इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि इसमें सभी मेंबर्स इंग्लिशमैन मतलब ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस की सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को ख़त्म कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था. द कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन. व्हेन इट अराइव्ड इन इंडिया ऑन 4 February 1928, इट वाज greeted by an all-India hartal. Slogans of Simon Go Back were raised all over the country. There were public demonstrations against it. कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया और जब वो कमीशन इंडिया आया तो इंडिया ने उसको हड़ताल के साथ ग्रीट किया, वेलकम किया और स्लोगन्स बोले साइमन गो बैक. Purn Swaraj Resolution. Demand for complete independence had been growing for some years. At its annual session in 1928, Congress passed a resolution demanding dominion status. अब इंडिपेंडेंस लेने के लिए कांग्रेस ने एक डिमांड रखी कि उनको डोमिनियन स्टेटस, उनकी खुद की गवर्नमेंट बनाने का स्टेटस दिया जाए. इट वॉज अ लिटिल लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस. इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट इफ डोमिनियन स्टेटस वॉज नॉट गिवन विद इन अ ईयर द कांग्रेस वुड सेटल फॉर नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और उनने बोला कि अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस
फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करेगी। फिर कांग्रेस को पूरी तरह से इंडिया को इंडिपेंडेंट करना होगा। इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन एट लाहौर। लाहौर में सेशन था और सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इन इट द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट अल्टीमेट गोल, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल बताया। इट आस्क्ड ऑल कांग्रेसमैन एंड नेशनलिस्ट टू रिजाइन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द फोर्थकमिंग इलेक्शन। अब उनने बोला कांग्रेस के जितने भी लीडर्स लेजिस्लेचर में काम कर रहे हैं उन सबको अपनी सीट्स छोड़नी होगी और नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑन 26 जनवरी इट वुड बी ऑब्जर्व्ड एट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की फॉर्म में सेलेक्ट किया गया। टू अचीव इट्स डिमांड टू कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट अनदर मास मूवमेंट, और अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए नेक्स्ट मास मूवमेंट स्टार्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 to 1934 ये गांधी जी की लीडरशिप में था। 1930 में स्टार्ट हुआ था और स्टार्टिंग हुई थी डांडी मार्च से। मार्च टू डांडी। गांधी जी ऑलवेज थॉट ऑफ इनोवेटिव मेथड्स टू अपोज द गवर्नमेंट। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी के मेथड्स अलग थे, इस पर स्टार्ट किया सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने से। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास मोनोपोली थी सॉल्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल की। इंडियन पीपल को उस पर टैक्स देना पड़ता था और उनसे खरीदना पड़ता था। सो दिस वॉज एन इशू विच टच लाइफ ऑफ एवरी इंडियन। हर किसी को इस चीज़ ने टच किया। On 12th March 1930, Gandhiji along with 78 followers left the Sabarmati ashram at Ahmedabad and travelled towards Dandi, a village on the west coast of India. 12 मार्च को गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ गए अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। आफ्टर वॉकिंग फॉर 25 डेज फॉर 385 किलोमीटर्स ही रीच्ड डांडी। वो लोग सब डांडी पहुंच गए। Gandhiji broke the law by making salt. He collected the natural salt lying on the seashore and boiled it to make the salt. गांधीजी ने salt बनाकर salt law तोड़ा. By breaking the law, he threw a challenge to the British government. Salt soon became a symbol of people's opposition to the government, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज दिया और एक अच्छा सिंबल बन गया अपोजिशन के लिए। इन तमिलनाडु सिराज गोपालाचारी लेड अ सिमिलर मार्च फ्रॉम त्रिचिनोपोली टू वेदा रमनयम। In Gujarat, Sarojini Naidu protested in front of salt deposits. Lakhs of people, which included a large number of women, participated in these protests. तमिलनाडु में, गुजरात में इन जगह पे सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैरीड फॉरवर्ड द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं हुआ था वो चीज़ें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुई। Hotels made life came to a standstill. There was a large-scale boycott of schools, colleges and offices. इन चीज़ों का boycott start हो गया। Foreign goods को बड़े bonfires में जला दिया गया। लोगों ने टैक्स बंद कर दिया। Foreign goods were burnt in bonfires. People stopped paying taxes. They faced lathis and bullets of the police. No one struck back. कोई भी पीछे नहीं हटा। द मूवमेंट वॉज टोटली नॉन वायलेंट। धीरे धीरे इन चीज़ की न्यूज़ पूरे न्यूज़पेपर से इंडिया में स्प्रेड हुई और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल गेन्ड स्ट्रेंथ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। इन नवंबर 1930 गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर a conference in London to discuss reforms passed proposed by Simon Commission. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई लंदन में ताकि उन चेंजेस के बारे में डिस्कस कर सके जो साइमन कमीशन ने बताए हैं। द कांग्रेस बॉयकॉटेड इट। ओनली द मुस्लिम लीग, द हिंदू महासभा एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रिंसेस पार्टिसिपेटेड। मुस्लिम लीग के लोगों ने, हिंदू महासभा ने और जो इंडियन रूलर्स हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द कांग्रेस नो डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कुड बी टेकन। दस द कॉन्फ्रेंस वॉज अ फेलियर। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया इसलिए कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। गांधी इरविन पैक्ट 1931। इन 1931 गांधी जी मेट द वॉइसरॉय इरविन एंड साइन द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी ने वॉइसरॉय इरविन के साथ मिलकर एक डील साइन की। अंडर इट्स टर्म द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज चार्ज विद एक्ट्स ऑफ वायलेंस। गवर्नमेंट ने उन सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए हाँ भरा जिन्हें वायलेंस कमिट नहीं किया था। द कांग्रेस इन टर्न एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने उसके बदले में बोला कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर देंगे। Second Roundtable Conference 1931. In September 1931, गांधी जी went to London. गांधी जी लंदन गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठकर उनने मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस एंड इंडियन रूलर्स भी इन्वॉल्व थे। मोस्ट ऑफ दीज पीपल क्लेम टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली ऑफ द रेस्पेक्टिव कम्युनिटीज़। ये अपने कम्युनिटी के लीडर बन के आए थे और गांधी जी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गवर्नमेंट रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड्स पुट अप बाय द गांधी जी। गवर्नमेंट ने मना कर दिया और ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई।
Resumption of the movement. After Gandhiji's return to India, the Congress resumed the civil disobedience movement. अब civil disobedience movement वापस start हुआ. The government suppression intensified. Lakhs of people were put in jail. गवर्नमेंट ने बहुत गंदे तरीके स्टार्ट कर दिए लोगों को टॉर्चर करने के, लोगों को जेल में डाल दिया. All major leaders including Gandhiji were arrested. सब बड़े leaders अरेस्ट हुए. The struggle lost its focus. उनका फोकस खत्म हो गया क्योंकि लीडर्स ही नहीं थे. In 1934 the Congress withdrew the movement और इसी वजह से civil disobedience movement को वापस withdraw. Next is civil disobedience to quit India movement. Mahatma Gandhi has mobilized the entire country in the anti-British struggle. ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लोगों को खड़ा किया. फॉर सम ईयर्स आफ्टरवर्ड्स नो मेजर ऑफेंसिव वॉज लॉन्च और कुछ टाइम तक कोई बड़ा स्टेप आगे नहीं लिया गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ने नया एक्ट डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसके कुछ मेन फीचर्स हैं. इंडिया वॉज टू बिकम अ फेडरेशन इफ मोर देन हाफ ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन. अगर आधे से ज़्यादा जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट से, अगर वो उनमें ज्वाइन करने को तैयार होते हैं तो इंडिया पूरा एक फेडरेशन बन जाएगा. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज ग्रांटेड. द मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. जो छोटे छोटे स्टेट्स अलग अलग थे सबको पावर्स दे दी गई और उनके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई और उन्हीं के मिनिस्टर्स रखे गए. द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर वॉज ऑल्सो इंक्रीज. पावर्स बढ़ा दी गई. वोटिंग राइट्स अभी भी लिमिटेड थे. ओनली 14% पीपल हैड द वोटिंग राइट्स. Next, diarchy was abolished at the provincial level but introduced at the center. जो dual government का system था provincial से ख़त्म करके center पे start कर दिया. The viceroy became more powerful and was not responsible for the legislature. viceroy और ज़्यादा powerful हो गया और legislature को answerable नहीं था. The act was rejected by the Congress. The Congress decided to contest the elections to the Provincial Legislative Assembly in 1935. Congress ने act को reject कर दिया और elections लड़ने का सोचा. In these elections, it won an absolute majority on 6 seats in 6 provinces. कांग्रेस इलेक्शंस जीती और 6 सीट्स पे मेजॉरिटी सीट्स 6 जगह पे मेजॉरिटी के साथ जीत गई. इन 3 प्रोविंसेस इट emerged as largest single party और 3 जगह पे तो सिर्फ एक अकेली ही सिंगल पार्टी विनर में रही. It formed ministries at its own in 7 out of 11 provinces. 11 states पे से उसने 7 पे अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली थी. These ministries did useful work in the field of education and upliftment of Harijans. Second World War started in 1939. Britain involved India in this war without even consulting the leaders of the Congress. Second World War में ब्रिटिशर्स ने इंडिया से पूछे बिना, कांग्रेस के लीडर से पूछे बिना इंडियंस को इन्वॉल्व कर लिया. In March 1942, Sir Stafford Cripps came to India with some proposals. The Congress felt that the proposal offered too little and too late. कांग्रेस को लगा बहुत थोड़ी चीज़ें दे रहे हैं और वो भी बहुत लेट. गांधी जी डिस्क्राइब द क्रिप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक कि अब ये चेक पुराना हो गया है, ये चीज़ काम नहीं आएगी. ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अनदर मास मूवमेंट एंड द मूवमेंट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. In August 1942, Mahatma Gandhi launched the Quit India movement, means Bharat Chodo Andolan. A resolution was passed on 8 August 1942 in Bombay by the All India Congress Committee declaring its demand for an immediate end of British rule. अब कांग्रेस ने बॉम्बे में जो सेशन हुआ था उसमें एक कमेटी बनाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और उसमें ये डिमांड रखी कि अब ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से इंडिया छोड़ के जाना होगा. द कांग्रेस डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज मास स्ट्रगल्स ऑल ओवर द कंट्री. गांधी जी स्लोगन ऑफ डू और डाई, करो या मरो, inspired the entire nation. Every man, women and children begin to dream of a free India. सब इंडिया के फ्री होने के सपने देखने लगे. The government response was quick and aggressive. बहुत aggressive response था गवर्नमेंट का. The कांग्रेस को बैन कर दिया और उसके बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया. Before they could start mobilizing the people were unstoppable. There were हड़ताल्स, demonstrations all over the country. People attacked railway stations, law courts and police stations. लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया. उनने हड़ताल शुरू कर दी. रेलवे स्टेशंस पे, लॉ कोर्ट्स पे, सब जगह उन्होंने अटैक करने स्टार्ट कर दी. The railway lines were damaged and telegraph lines were cut off. In some places, people even set up independent governments. लोगों ने independent government बनाई. The British responded with terrible brutality. बहुत बुरा बिहेव किया. The army was called out to assist the police. आर्मी को बुलाया गया पुलिस की हेल्प के लिए. लाठी चार्ज कर दिया गया और फायरिंग की गई डेमोन्स्ट्रेटर्स पे. बाय दिसंबर 1942 60,000 पीपल को जेल में डाल दिया गया. इंडियंस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा सफ़र किया. देयर वॉज अ टेरिबल फेमाइन इन बंगाल इन 1943 इन विच 30 लाख पीपल डाइड.
एक बहुत बड़ा फैमाइन आया था और 30 लाख लोग मर गए थे। द गवर्नमेंट डिड लिटिल टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्टार्विंग मिलियंस, और गवर्नमेंट ने उनकी बहुत कम हेल्प की, कुछ बड़ी हेल्प नहीं की। Next is Azad Hind Fauj. The national movement grows stronger after the formation of Indian National Army. अब एक आर्मी बनी जिसको बोला गया INA या आज़ाद हिंद फौज. An important role in its formation was taken by the Indian Independence League, an association. ये एक एसोसिएशन थी जिसे राज बिहारी बोस ने बनाया था. जनरल मोहन सिंह was the leader of this army. उनके लीडर थे. It consisted largely of the Indian prisoners of war who served the British and had been captured by the Japanese during Second World War. इसमें जो मेन इंडियंस थे वो लोग थे जिन्हें ब्रिटिशर्स का साथ दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जापान ने उनको वॉर प्रिजनर्स की तरह अपने पास रख लिया था. Some Indians settled in Southeast Asia and also joined this army. जो लोग साउथ ईस्ट एशिया में थे उनने आर्मी को ज्वाइन किया और इसकी स्ट्रेंथ थी 45,000 सोल्जर्स. 1943 में आज़ाद हिंद फौज के लीडर बने सुभाष चंद्र बोस, नेताजी. On 21 October 1943 he declared the formation of Provisional Government of Independent India in Singapore. उन्हें डिक्लेयर किया कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, उसकी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी, और ये डिक्लेरेशन किया था सिंगापुर में. He went to Andaman and hoisted the Indian flag there. वहाँ पे इंडियन फ्लैग होस्ट किया. In 1944, Azad Hind Fauj attempted to enter India through the northeastern routes. इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से इंडिया में एंटर किया. नेताजी also took the help of Japan to organize the anti-British revolt. जापान की हेल्प ली ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सके. Slogans of दिल्ली चलो and जय हिंद won many supporters to this cause. ये स्लोगन्स उनके बहुत फेमस हुए. A separate women's regiment called the रानी झांसी रेजिमेंट वॉज फॉर्म्ड. उसकी कैप्टन थी रानी लक्ष्मी स्वामीनाथन. द आज़ाद हिंद फौज फेल टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर से फ्री नहीं करा पाई. सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मर गए. द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज बिकेम नेशनल हीरोज एंड सॉन्ग्स ऑफ देयर ब्रेवरी वर संग ऑल ओवर द कंट्री. वो ब्रेव हीरोज कहलाए और उनके बारे में गाने गाए गए. Towards independence. In February 1946, the cabinet mission arrived in India. अब cabinet mission आया. It presented independence plan. उन्हें independence का एक plan अलग से दिया. The plan proposed the formation of an interim government and convening of constituent assembly composed by the members elected by the provincial legislatures and nominees of the rulers of princely states. प्लान ने बोला एक गवर्नमेंट बनेगी जो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इलेक्शंस होंगे. प्रिंसली स्टेट के रूलर्स भी इसमें नॉमिनीज की फॉर्म में बैठेंगे. एज सजेस्टेड बाय कैबिनेट मिशन एन इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज फॉर्म्ड. एक गवर्नमेंट बनाई गई जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू. इन दिसंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड द वर्क ऑफ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. और उसने इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम स्टार्ट किया. Independence and partition. The Muslim League and the Indian princes refused to participate in the working of Constituent Assembly. मुस्लिम लीग के लोगों ने और इंडियन रूलर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेने से मना कर दिया. The former stepped up its demand of a separate country for the Muslims. मुस्लिम लीग ने बोला मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री होनी चाहिए. लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया इन मार्च 1947. उस टाइम इंडिया में आए थे लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया के वॉइसरॉय थे. ही प्रेजेंटेड अ प्लान अकॉर्डिंग टू विच इंडिया वॉज to be divided into two countries, India and Pakistan. लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्लान दिया जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड होने वाला था. प्रिंसली स्टेट्स को ये फ्रीडम दी गई कि आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो. हिंदू एंड मुस्लिम ब्राइड्स हैड ब्रोकन आउट इन मैनी पार्ट्स. अब दंगे चल गए, बहुत सारे राइट्स फैल गए. द अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन लेड टू मोर राइट्स स्पेशली इन पंजाब एंड बिहार. स्पेशली पंजाब और बिहार इन दो जगह पे दंगे बहुत ज़्यादा हुए. Lakhs of people were killed and millions became homeless. बहुत सारे लोग मरे, उनके घर चले गए. National leaders moved to disturbed areas to prevent people from killing each other in the name of religion. जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो उन जगह पे गए जहाँ पे दंगे बहुत ज़्यादा थे ताकि लोगों को एक दूसरे से मारने से रोक सके. गांधी जी kept a fast up to death to stop these killings. गांधी जी ने मरने तक के लिए अनशन किया ताकि लोग मारकूट बंद कर दें. To prevent killings, the Congress agreed to the partition. लोगों को रोकने के लिए कांग्रेस ने पार्टीशन के लिए हाँ भर दी ताकि एक सिविल वॉर नहीं हो. A separate country comprising of West Punjab, Sindh, Northwest Frontier Province and East Bengal was created. इनको मिला के एक अलग कंट्री बनाई गई जिसका नाम दिया गया पाकिस्तान.
On 15th August 1947, India became independent after almost 200 years of British rule. 15 अगस्त 1947 को 200 साल के ब्रिटिश रूल से इंडिया फ्री हुई and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. Within months of achieving independence, India went into mourning again. Independence के कुछ टाइम बाद इंडिया में फिर गम जैसा भी माहौल हो गया. On 30th January 1948, Mahatma Gandhi, the father of nation and symbol of India's freedom, was shot dead. महात्मा गांधी को गोली मार दी गई. The man who stood for peace, non-violence and communal harmony fell a victim to the forces of communalism. महात्मा गांधी पीस के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, कम्युनिटी में एक साथ लोग रहें, इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और वो खुद मारे गए. ही बिकेम अ मार्टियर टू द कॉज ऑफ टॉलरेंस, इक्वलिटी एंड पीस. वो एक मार्टियर बने इन सब चीज़ों के लिए ताकि लोग बराबर हो, शांति हो, सब एक दूसरे को टॉलरेट करें, कुछ गलत चीज़ें नहीं हो. His absence is felt in India even today. आज भी उनकी कमी. This was the whole chapter for India's independence. Thank you everyone.